good morning, all of you. Today we are going to start the next topic, that is the challenges for the political parties. In yesterday's class, we studied about different type of political parties, national level political parties and state level political parties. Now we will see some of the challenges which are faced by different political parties. Challenges means the problems. So you have to be very careful if the question comes in the examination, that what are the challenges to political parties. Challenges means the problems which they face. Now, we have seen how crucial political parties are for the working of democracy. Since parties are most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. So as we know that democracy में जो है पॉलिटिकल पार्टीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो लोग जो होते हैं सबसे पहले वो पार्टी को ही ब्लेम करते हैं. Because for example, if the present government is not working properly, then people blame BJP and the NDA for all the mishappenings. कि भाई जो भी बीजेपी है वो सही से कंट्री को रूल नहीं कर पा रही है. सो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सामने सबसे पहले जो आता है ब्लेम करने के लिए, वो हम पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम करते हैं. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions as well. This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on four problems areas in the. तो जो लोग होते हैं वो बहुत डिससेटिस्फाई होते हैं बहुत टाइम, और पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं. ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसको सारी की सारी पब्लिक उसे सपोर्ट करे. तो वन और दी अदर वे में सब जो है पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ही रहते हैं. Now, political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy. So, political parties जो है they always face straight criticism and dissatisfaction from the people. कुछ भी होता है तो लोग जो है पॉलिटिशियंस का नाम लेके या पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेके हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, डिस्कशन होते रहते हैं. सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करनी पड़ती है ना. द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज को फर्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? इंटरनल डेमोक्रेसी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी कैसे बहुत बड़ी समस्या. All over the world, there is a tendency in the political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. अब क्या मुझे इस लाइन से आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. ये जो मैंने लाइन आपको अंडरलाइन करवाई है, उससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? Concentration of power in one or few leaders at the top. Ma'am, the leaders which are leading it okay, ठीक है. विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल, बहुत जो बड़ी पार्टीज होती हैं, जो पावरफुल पार्टीज होती हैं, उनमें एक टेंडेंसी होती है. Okay, yes, Ina. The top leaders would like to have their own individual opinion, but they will not ask the people who are at lower stage in the political party, and those at the lower end would prefer would think like would happen like they won't have any other major opinion. The leaders, the active members will only have their opinions and will lead the entire party on their own basis and on their own rules. Okay, yes. And another will lack those opportunities. Okay, correct. So basically lack of internal democracy means, जैसे वीना ने भी एक्सप्लेन कर दिया, that कुछ जो पावर पार्टीज होती हैं, जो लार्ज पार्टीज होती हैं, बिग पार्टीज होती हैं, उसमें क्या होता है कि देयर इज डोमिनेशन ना ऑफ फ्यू लीडर्स इन द पार्टी. कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे जो उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, जो जिनके हाथ में पूरी पावर होती है उस पार्टी की. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी देखें तो अगर बीजेपी की हम बात करें तो ऑल द पावर इज राइट नाउ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ टू पीपल, लाइक मोदी जी एंड दूसरे उनके साथ कौन रहता है? मैम अमित शाह. यस, अमित शाह. तो अमित शाह एंड जो मोदी जी हैं,
उनके हाथ में, अगर हम एक तरह से देखें तो पूरी पावर उनके हाथ में कंसंट्रेटेड है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी की पूरी बीजेपी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, क्या पता वो मतलब करते, लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें तो कुछ हर पार्टी में कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो हु आर मोस्ट पावरफुल, हु आर द फेस ऑफ द पार्टी, एंड ऑल द पावर आर बेसिकली कंसंट्रेटेड इन देयर हैंड्स। एंड जब भी कोई पार्टी से रिलेटेड whenever any important decision or any important policy is made regarding the particular party, the small members are never कंसिडर्ड, उनसे कभी भी पूछा नहीं जाता है। और इनफैक्ट उन्हें पता ही नहीं होता है कि मतलब मेन मीटिंग में क्या हो रहा है, जो है पार्टी से रिलेटेड क्या फैसले लिए गए, उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी रजिस्टर्ड मेंबरशिप नहीं होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स नहीं कराई जाती हैं, या फिर कोई भी इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं, ताकि जो है इलेक्शंस का मतलब ये है कि पार्टी के अंदर भी इलेक्शन हो सकते हैं। पार्टी के अंदर आप इलेक्शन करवा के जो भी पॉपुलर फेसेस है आप उनको सामने ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इलेक्शंस नहीं करवाए जाते, जिनको भी मन करता है, जो हमको लगता है कि जिनका ज्यादा दबदबा है, जिनकी ज्यादा कंट्रोल है, उनको जो है इम्पोर्टेंट जो है फेस बना दिया जाता है। अब जैसे आप कांग्रेस को देखिए, तो कांग्रेस में अगर आप इलेक्शन करवा दें कि पीएम पोस्ट के लिए कौन होना चाहिए, तो शायद राहुल गांधी कभी नहीं चुने जाए। लेकिन क्योंकि वहां पे सारा कंट्रोल जो है राहुल गांधी एंड जो भी गांधी फैमिली उनका है, तो उन्होंने वो क्या करते हैं कि राहुल गांधी को ही बार बार जो है फेस बनाते हैं इलेक्शंस के टाइम में, लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से, कि भाई यूपीए का जो, अगर यूपीए जीत गई तो उसका लीडर कौन होगा, राहुल गांधी, ठीक है ना। तो इसीलिए शायद पार्टी सक्सीड नहीं कर पा रही है। तो इससे कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, व्हेन फ्यू पीपल or leaders have all the power in their hands in a political party, and other members, ordinary members, they do not get enough sufficient importance or even information what is happening inside the party। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, बस वो इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी रैलीज हो गई तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर लेंगे, और कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा करना होता है तो उनको भेज दिया जाता है कि आप चलो ये सब करो, लेकिन वो कभी भी मतलब उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो फ्यू जो लीडर्स होते हैं उन्हीं के हाथ में पूरी पावर होती है। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। इस लाइन का मतलब जानते हो क्या होता है? लॉयल्टी मीन्स क्या होता है कि हमारा जो भी लॉयल्टी मीन्स हमारी जो भी एक विश्वास जो होता है वो एक मतलब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को ना होकर, आज के टाइम में क्या है कि जो एक पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनका मेन क्या होता है कि चापलूसी करना, जो भी बटरिंग करना, जो भी हाई पोस्ट पे लीडर्स हैं उनकी बटरिंग करो और हमें अच्छा पोर्टफोलियो या हमें पार्टी में टिकट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पार्टी से जो है डेडिकेटेड ना होकर, उनकी लॉयल्टी जो होती है पार्टी को ना होकर इंडिविजुअल लीडर से होती है, कि हम जितनी इस लीडर की वो करेंगे उतना ही सपोर्ट करेंगे, उतना ही वो हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्टी में रोल दे देगा। तो ये सारी चीजें चलती है। इससे क्या होता है, जो कि पार्टी में हर मेंबर को जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। Then second is the second challenge of dynastic succession is related to the first one, ठीक है। अब ये फर्स्ट वन से ही रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको अभी गांधी फैमिली का एग्जांपल दे दिया ऑफ कांग्रेस पार्टी, उसी तरह से उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ पे कुछ फैमिलीज का ही दबदबा है, ठीक है। अब जैसे कि आपका जिसको कहते हैं हेरिडिटरी प्रॉब्लम, since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party, ठीक है। इसमें कहा जाए क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है अपना कुछ इंटरनल जो है चीजें होती हैं, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपन नहीं होता है। अगर कोई ऐसी पार्टी जिसमें ओपन हो और हर चीज जो है इलेक्शन के थ्रू वो ट्रांसपेरेंट हो कि हमारा नेता कौन होगा, हम इसी को अपना फेस बनाएंगे, तो ऐसे शायद हर व्यक्ति को मौका मिले जो कि डिजर्विंग है। लेकिन क्योंकि सब कुछ जो है छुपा के किया जाता है, कुछ पता ही नहीं रहता है कि मतलब किसमें क्वालिटी है नहीं है। जो अब जैसे कांग्रेस में आप देखिए तो सचिन पायलट थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, ये जो काफी क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन इनको प्रॉपर जगह मिली नहीं कभी राहुल गांधी के सामने, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड होते हुए भी, इनके अंदर जो है क्वालिटीज होते हुए भी इनको कभी भी कांग्रेस का फेस नहीं बनाया गया फॉर द पीएम पोस्ट या जो भी है। तो इससे क्या होता है कि जो लेस क्वालिफाइड होते हैं वो आगे आ जाते हैं बिना किसी उसके, मतलब बिना किसी क्वालिटी के, और जिनमें क्वालिटी होती है वो पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ओपन नहीं होते, इसीलिए। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द, ये हर पार्टी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ पार्टीज के साथ होता है। लाइक अगर हम लालू प्रसाद की पार्टी को देख लें, क्योंकि भाई उन्होंने ही वो पार्टी बनाई है, तो उन्हीं के लोग जो है उसको डोमिनेट करते हैं,
आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने उस पार्टी को, ही वाज द फाउंडर ऑफ द दिस पार्टी, तो भाई उन्हीं के जो बेटे हैं या उन्हीं के भाई भतीजे सब उसी पार्टी में वही सीएम बनते हैं। कांग्रेस का आप एग्जांपल देख लीजिए, कांग्रेस द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डायनेस्टिक प्रॉब्लम, कि कैसे जो है उन्हीं के इंदिरा गांधी से लेके फिर राजीव गांधी, सब जो है जवाहरलाल नेहरू, सब उन्हीं पार्टी के जो है मेंबर्स बनते रहे। जबकि कांग्रेस पार्टी को तो गांधी फैमिली ने बनाया भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो आपकी जो है बहुत पहले से आज़ादी के टाइम की पार्टी है, लेकिन जब से जवाहरलाल नेहरू उसमें आए, उन्होंने पूरा पार्टी, उनकी फैमिली का दबदबा हो गया, और जो लेस क्वालिफाइड थे वो आगे सामने आते गए, और उनकी जगह जो हाई क्वालिफाइड लोग थे वो पीछे रह गए। एक्सेप्ट जब आपके ये बने थे, कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है ना। और मनमोहन सिंह को भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि उन्हें ये लग रहा था, जैसे खैर ये अपने अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, बट उसी समय जो है 2 टर्म्स के लिए जो है आउट ऑफ द जो भी फैमिली से बाहर किसी आदमी को बनाया गया था पीएम, और वो थे आपके मनमोहन सिंह। उसके बाद फिर से जो है राहुल गांधी जो है फेस बन गए, और आप देखते हैं आज पार्टी की क्या कंडीशन है। अगर कांग्रेस में जो है फैमिली सक्सेशन को छोड़कर अगर उन्होंने इस पे कंसंट्रेट किया होता कि जो भी क्वालिफाइड हैं उनको मतलब पार्टी में जगह दी जाए, तो शायद आज कांग्रेस का जो है ये कंडीशन नहीं होती। सो दोज हु हैपन टू बी लीडर्स आर इन पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। तो जो भी मान लो कोई ऐसा आदमी जो किसी पार्टी में जो काफ़ी पावरफुल पोस्ट पर है, तो वो उन लोगों को फेवर करता है जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे एक अगर फादर है तो ये चाहेगा कि जो मेरा बेटा है वो उस जो है पार्टी को सक्सीड करे और वो जो है इलेक्शन जीते। तो ये बहुत ही बिगेस्ट चैलेंज है। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, एंड आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स कैसे सिर्फ एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के जो परिवार के लोग होते हैं उन्हीं को इम्पोर्टेंट पोस्ट दी जाती है, और जो मेहनत करते हैं, जो बहुत क्वालिफाइड भी होते हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते हैं। एंड दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी, दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जो डिजर्विंग होते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, और जो फैमिली की वजह से जो लेस क्वालिफाइड होते हैं, जो काम करने के लायक नहीं होते, वो आगे आ जाते हैं। लेकिन जैसे आप बीजेपी में देखिए तो जो मोदी जी जो आए हैं ये जस्ट इसके अपोजिट है, एंड दैट इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि मोदी जी किसी भी फैमिली को बिलोंग नहीं करते। क्योंकि एक मैं बीजेपी का एक एग्जांपल अच्छा देना चाहूँगी, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें फैमिली पॉलिटिक्स ने डोमिनेट नहीं किया आज तक बीजेपी में। उसमें जो भी है मतलब अलग अलग लीडर्स आए थे, जैसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज अटल बिहारी वाजपेयी का कोई भी उसमें फैमिली मेंबर नहीं है बीजेपी में। या फिर उसके बाद जो भी है आपके जो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो थे, या फिर अभी आप मोदी जी जो है, तो मतलब कोई फैमिली मेंबर नहीं है इसमें, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। तो इस तरह की जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बहुत जगह होती है, लेकिन इंडिया में काफ़ी जो है हद तक डोमिनेट होता है। Now the third challenge is about the growing role of money and muscle power। बच्चों जो ये आपको प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं आज, आई थिंक आप ये सब ऑलरेडी रिलेट करते हो, आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने इसको फील किया हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, बताइए आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो जो मैंने अभी 2 पॉइंट्स बताए आपको, फैमिली जो फैमिली हेरिडिटरी प्रॉब्लम है वो जो पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। देन जो मैंने आपको पहला बताया कि जो लॉयल्टी होती है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, ये आप लोग इसको एक्सेप्ट करते हो, ऐसा होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या बहुत बार बोलना पड़ेगा तब आप लोग जवाब देते हो, मुंह बंद करके बैठे रहते हो? Then third problem is of money and muscle power in parties, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। अगेन ये भी वही चीज़ है कि पार्टीज में उन लोगों का काफ़ी जो है उनको वेटेज दिया जाता है, जो कि मनी, जो जितना पैसा पार्टी में लगा सके, और जिसके पास मसल पावर समझना, जैसे कि जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। आप देखना हर पॉलिटिकल पार्टीज में जो होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या तो वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, या तो उनका जो भी कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। तो ये ऐसे लोगों को मतलब कि बहुत पार्टी, अगर किसी भी आप बीजेपी से लेके कांग्रेस या इवन आप पार्टी को भी ले लेंगे ना, उसमें कुछ परसेंटेज के आपको लोग ऐसे मिलेंगे, लीडर्स ऐसे मिलेंगे जिनका कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है।
ठीक है, तो ऐसा होता ही होता है और ऐसे लोगों को रखा जाता है क्यों, ताकि वो जो है पार्टी को मनी के जो उसमें सपोर्ट कर सके, पार्टी में पैसा लगा सके, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, रैलीज ऑर्गेनाइज करनी होती है या फिर कहीं आना जाना, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैनर्स बनाने या फिर जो है मीडिया में आपको अपने जो है एजेंडास को जो है दिखाना है, तो इसके लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं इलेक्शंस के टाइम में, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है उन लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है जो कि जिनका बैकग्राउंड काफ़ी रिच है या फिर जो जिनके पास जो है मसल पावर है। Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win election. अब आज के टाइम में बहुत ही कम पार्टीज जो मोरल जो है वैल्यूज को प्लेस देती हैं, बाकी हर पार्टी जो है इस होड़ में लगी रहती है कि हम किसी भी तरह से चुनाव जीतें, बाय हुक और क्रूक, किसी भी तरह से हमें बस चुनाव जीतना है। और इसकी वजह से वो लोग गलत लोगों का सहारा लेते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी का नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है, तो मतलब उनको पता है सबको कि वो अपने एरियाज में काफ़ी उस टाइप के लोग हैं, ऐसे नहीं है दूसरों को डरा धमका के रखने वाले, लेकिन उनको पार्टी में जगह दी जाती है ताकि लोग डर के मारे ही कम से कम इलेक्शन के टाइम में वोट करें। जो अमीर होते हैं वो इलेक्शन के टाइम में काफ़ी पैसा जो है कलेक्ट करते हैं और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decision of the parties. अब कुछ पार्टीज होती हैं उसमें रिच लोग, स्पेशली जो बिजनेसमैन होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो भी उसमें काफ़ी हद तक फंड प्रोवाइड करते हैं पार्टीज को। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो फंड प्रोवाइड कर रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो फिर उसकी जो है उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है पॉलिसीज में, भले ही वो उसका मेंबर ना हो। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी में जो आपके ये अंबानीज हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब वो अंबानीज जो है दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द बीजेपी, बट फ्रॉम आउटसाइड दे आर सपोर्टिंग द पार्टी। तो इससे क्या होता है कि जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो वो उन कंपनीज को फेवरेबल होता है, कई बार ऐसा होता है। But in some cases, parties support criminals who can win elections. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics. तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। It is a worrisome problem कि रिच लोगों का और अगर बिग कंपनीज का इंटरफेरेंस इस तरह से पार्टी में होता रहेगा, तो गवर्नमेंट जो होती है उनकी सारी पॉलिसीज किसके लिए होंगी। अब जैसे कि बीजेपी एनडीए ने इस एग्रीकल्चरल पॉलिसी निकाली है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है और कई लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के अगेंस्ट में है और जो रिच कंपनीज हैं, बड़ी बड़े जो उद्योग हैं, उनके जो है वो सपोर्ट में रहते हैं, उनकी सारी पॉलिसीज उनको फेवर करती हैं। ये मतलब जो है ब्लेम किया जाता है। तो और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उन्हें वो कहते हैं कि जो अंबानीज हैं या फिर जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके साथ जो है एनडीए का काफ़ी ज़्यादा गठबंधन है, तो ये काफ़ी बार उन पर ब्लेम किया जाता है। Now, fourth challenge is that often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline. जो ये है बहुत ही आम प्रॉब्लम है कि हमारे देश में पार्टीज तो हैं, लेकिन तब भी वैसे तो हमारा देखो हर चीज़ की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो हम एक तरफ से कहेंगे कि वी आर मल्टी पार्टी सिस्टम एंड हमारे पास काफ़ी अच्छी चॉइसेस भी हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती हमारे वोटर्स के सामने। जैसे अब राइट नाउ वी हैव ओनली 2 चॉइसेस, आइदर फ्रॉम बीजेपी और कांग्रेस, और अब तो कांग्रेस की भी चॉइस नहीं है क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल डिक्लाइन पर है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट इलेक्शन में भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तभी प्रॉपरली वर्क करता है जब आपके जो वोटर्स हैं उनके पास प्रॉपर चॉइस हो कि अच्छा अगर ये काम नहीं करा प्रॉपर, तो मैं नेक्स्ट इलेक्शन में जो है इस सरकार को हम बदल सकते हैं। तो मीनिंगफुल डेमोक्रेसी तभी होती है जब रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको ये डर होता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं अगले इलेक्शंस में लोग मुझे हटा के दूसरे को ले आएंगे। लेकिन अगर रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसको ये डर नहीं है, उन्हें पता है कि हमारे इस बात कोई है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, फिर अपनी मनमानी करेंगे। उन्हें पता, अब इस चाइना में क्या है, पीपल्स कांग्रेस जो भी है वहाँ की जो एक ही पार्टी है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो वही जब से चाइना को इंडिपेंडेंस मिली है वही सबसे बड़ी पार्टी है और वही रूल कर रही है। तो उनको पता है कि हमारे सिवा कोई है ही नहीं, तो लोगों के पास ना चॉइस है और वही जो है अपनी अपनी तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो है या फिर जो अमेरिका है, ब्रिटेन, वहाँ पे ऐसा नहीं है। लोगों के पास तब भी चॉइस होती है क्योंकि हमारे पास एक नहीं है तो दूसरा हम जो है कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमारे पास इतने अच्छे लीडर्स नहीं है।
कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि एक पार्टी में भी लीडर्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लाइक कांग्रेस में भी बहुत अच्छा लीडर नहीं, पार्टी तो है हमारे पास, लेकिन अब एक ही हमारे पास चॉइस है एनडीए, क्योंकि कांग्रेस जो है यूपी है, उसमें कोई ऐसा फेस नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको हम एज ए पीएम पोस्ट पे चाहें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एक चैलेंज है। नाउ हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, हम पार्टीज को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, मैम कैसे बेहतर बना सकते हैं? मैम 8:15 हो गए। ओके ठीक है, बस मैं इसको फिनिश कर रही हूँ, एक मिनट। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट, क्योंकि फिर क्लास कल होगी नहीं ना। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम द चेंजिंग पार्टीज। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ना कि देखते हैं कि हमारी पार्टी हार रही है, दूसरी पार्टी जीत रही है, तो क्या करते हैं, डिफेक्शन कहते हैं इसको। मतलब मिनिस्टर्स जो लीडर्स होते हैं वो एक पार्टी छोड़कर तुरंत दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए हैं कि कोई भी जो एमएलए है या जो एमपी है वो अपनी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जो है नहीं जाएगा, नहीं तो उसको फिर जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। Then the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Then Supreme Court ने जो है एक ऑर्डर पास किया जिसमें जो भी मनी जैसे रिच लोग हैं या फिर जो क्रिमिनल्स हैं उनकी जो भी पहुंच है उसको कम किया जा सके। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट। उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल देता है और ये भी बताता है कि कहीं उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसको ये ब्यौरा देना पड़ता है, और वो ये डिफरेंट बात है कि उसका बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल नहीं हुआ है, लेकिन सबको अब कोई भी कैंडिडेट जिसको टिकट मिल रहा है और वो चुनाव लड़ने जा रहा है उसको एक एफिडेविट में अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा और क्रिमिनल केस तो नहीं है उसके अगेंस्ट में वो जो है इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। देन इलेक्शन कमीशन ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि पास ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने ये भी ऑर्डर दिया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने अंदर भी चुनाव कराने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने हैं और हर मेंबर को जो है अपना इनकम टैक्स भी फाइल करना है। कोई ऐसा नहीं करेगा कि कोई इलेक्शन अपना इनकम टैक्स फाइल ना करे। देन a law should be made, beside these many suggestions are often made to reform political parties. A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution. मतलब हर पार्टी को एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए अपने जो भी उसके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं पूरा फाइल बनानी चाहिए, और जो है ऐसा ना हो कि एक ही आदमी का उस पर दबदबा रहे, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। आप इसको और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। देन ये भी कहा जाता है कि 1/3 जो टिकट है कम से कम महिला जो कैंडिडेट है उसको मिलना चाहिए और उसको प्रॉपर कोटा देना चाहिए। Then there should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. और ये भी कहा जाता है कि कहा जाता है कि जो ये पार्टीज होती हैं ये गलत चक्करों में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है इलेक्शन के टाइम में। तो इसीलिए अगर जो है स्टेट अगर उन्हें पैसा देगा, सरकार उन्हें पैसा देगी इलेक्शन के टाइम में, तो वो गलत चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। देन उन्हें पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन इसका भी खर्चा देना चाहिए ताकि वो गलत चीज़ों में ना पड़े। तो ये सारी सजेशंस दी गई हैं, तो आप इनको दोबारा एक बार रीड कर लीजिएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये कोई बहुत ही जो है टफ टॉपिक नहीं था, बहुत ही इजी है। बेसिकली इलेक्शंस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे इलेक्शंस के, बाई इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। देन आपके जो कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। देन चैलेंजेस टू इलेक्शंस, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मल्टी पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम। तो एंड द फेमस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, रीजनल पार्टी होने के लिए, स्टेट लेवल पार्टी होने के लिए आपको क्या करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। और आप जो है इसको बहुत ही अच्छे से अगेन आप इसको रिवाइज करेंगे